Hello student, and once again we discuss the formulas of the three-dimensional geometrical shape. Okay, तो first figure is what? Cuboid. Cuboid का formula हमने पढ़ा है. It is what? Lateral surface area, total surface area and volume. We will find out. Lateral surface area is what? It is 2 into height in bracket you will get length plus breadth. Okay, we have minimized that formula. 2 into height in bracket you will get length plus breadth. Total surface area is what? Okay, it is 2 times length into breadth plus breadth into height plus L. Okay, then volume is what? Volume is LBH, that we know. Then next is what? Cube. Lateral surface area you will get 4L square, right? Lateral surface area is 4L square. Total surface area is what? 6L square. Okay, L is the side of the cube. Okay, and volume is L cube. Okay, next is the cylinder. In cylinder what? Radius and height is given. Okay, then what is the curved surface area? Curved surface area is 2 pi RH. Then the total surface area is what? It is 2 pi r plus in bracket r plus h. We have discussed already that it is 2 pi RH, that is the curved surface area plus the area of the base, right? ना हमने discuss किया है curved surface area plus area of the base. Okay, base circle 2 times circle, so you will get 2 pi RH plus 2 pi r square. Okay, so 2 pi r common and you will get r plus h. Okay, so then next is what? Volume of the cylinder, it is pi r square h. Okay, pi r square h. Then the cone, in cone what? Height पता है, radius है, and then length. Okay, sorry, this is the slant height. Okay, this is the slant height of the cone. Okay, तो इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने फाइंड आउट किया था कि व्हाट विल the लेंथ क्या हो रही है अपनी? इट विल बी द अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, लेंथ क्या हो रही है? लेंथ इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम. देन द कर्व सरफेस एरिया हुआ अपना पाई आर एल. ओके, कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल. देन क्या टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट? टोटल सरफेस एरिया हो रहा है दिस इज पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एल. ओके, टोटल सरफेस एरिया हो गया. ओके, so total surface area pi r plus n. Then volume is what? Volume क्या है? It is 1 by 3 pi r square h. क्या volume is what? 1 by 3 pi r square h. Okay, then next देखते हैं sphere हमारा shape है, तो surface area of the sphere is what? It is 4 pi r square. surface area क्या हो रहा है sphere का? It is 4 pi r square. and उसका volume, what is the volume of the sphere? It is 4 by 3 pi r cube. What is the volume? It is 4 by 3 pi r cube. ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट शेप है, फिगर है. इट इज अ हेमिस्फीयर. ओके, हेमिस्फीयर, ये स्फीयर था, दिस इज हेमिस्फीयर. ओके, तो हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया इज व्हाट? इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, राइट ना? कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर. वी स्टडी. देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज व्हाट? टोटल सरफेस एरिया क्या हो रहा है? 3 पाई आर स्क्वायर. ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या हो रहा है? 3 पाई आर स्क्वायर. एंड वॉल्यूम इज व्हाट? वॉल्यूम इज इसके यहाँ पे आएगा, सो इट इज 2 by 3. यहाँ पे 4 by 3 पाई आर क्यूब है, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो यू विल गेट 2 by 3 पाई आर क्यूब. ओके, 2 by 3 पाई आर क्यूब. तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं. ओके, सो हमने शेप समझे तो यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. ओके, सो देखो क्यूब का वैल्यू जो एक साइड दी रहेगी उसका क्यूब है. देन सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. कोन 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच. देन स्पीयर 4 by 3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्पीयर में तो एक ही गिवन चीज है ना, वो जो द रेडियस रहेगी स्पीयर की. ओके, 4 by 3 पाई आर क्यूब. हेमी स्पीयर का वैल्यू इट इज 2 by 3 पाई आर क्यूब. ओके, सो विद ऑल द ट्रिक्स, राइट ना, हमने जो भी ट्रिक्स सीखे एंड जो हमने शेप सीखे उससे यू कैन रिमेम्बर द फॉर्मूलाज. ओके, ओके, तो समझ में आ गया. सो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन दिस वन. तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं. तो इसको मैं ऐसे ही नहीं रहने दे सकती. ओके, तो वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स नाउ. देखो, the first problem is find volume of cone. First problem is what? Find volume of cone. क्या करना है? We need to find out the volume of cone. Find volume of cone. If radius of its base is, okay, radius of base is given. Radius
radius of base is, find value of cone if radius of base is 1.5 centimeter and perpendicular height is given. Perpendicular height is what? It is 5 centimeter. Okay, so first of all, what is the geometrical shape? It is a cone. Okay, so first of all we'll write the given data. Okay, so given data, what are the things we have? We have a radius of the base. Okay, it is the radius. Okay, so radius is what? It is 1.5 centimeter and then height is given. So radius is r and the height is what? It is h. Okay, because we are using the formula. In formula हम डायरेक्टली r and h यूज कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला यूज करने के टाइम पे. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर रेडियस के बाद r लिख रही हूँ और हाइट के बाद h. ओके, सो देन इट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, सो कोन क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोन? इट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. ओके, सो वी राइट, वी नो. ओके, वैल्यू ऑफ कोन. वैल्यू ऑफ कोन क्या है? कोन का वैल्यू इट इज 1/3 pi r square h. Okay, the value of the cone is what? It is 1/3 pi r square. Then we'll write क्या हो गया अपना? It is 1/3. Okay, it is 1/3 pi. What is the value of pi? It is 3.14. Okay, or 22/7 depending on the radius या height क्या दिया है उसके ऊपर हम पाई की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, राइट ना. अगर कुछ रेडियस और हाइट इट इज 7 और मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 है, 14 है, ओके, और 49, 21, मतलब कुछ भी मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा है ताकि कैंसिल हो, तब हम वी विल डेफिनेटली यूज 7. और इस टाइम पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो मैं 3.14 यूज करती हूँ क्योंकि 7 से डिवाइड तो नहीं होगा और मुझे 22/7 फिर से अपना काम बढ़ेगा. सो आई विल डायरेक्टली यूज 3.14. यहाँ पे मैंने 3.14 यूज किया. फिर रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस का स्क्वायर है 1.5 का स्क्वायर, तो आई विल 2 टाइम्स राइट 1.5 into 1.5. ओके, एंड हाइट इज व्हाट? हाइट इज 5 सेंटीमीटर. ओके, तो जो भी अपना यूनिट आएगा वैल्यू का वो क्या रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब रहेगा. ओके, देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेशन करना है. ये क्या होगा? 3 5 15 होता है, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा. देखो अभी इतना ही कैलकुलेशन करना है. ओके, 3.14 0.5 इससे मल्टीप्लाई 1.5 एंड 5 अगेन, इतना ही मल्टीप्लिकेशन करना है. पर देखो हम कैसे करेंगे अभी. देखो तो ये क्या, मैं क्या कर रही हूँ? 0.5 into 5 कितना होगा? 2.5, राइट ना. 5 5 जा 25. ओके, और 1 डेसिमल के बाद पॉइंट दिया. ओके, देन 1.5 एंड फिर से 3.14 से मल्टीप्लाई करना है. देखो अभी मैं क्या कर रही हूँ. देखो मैं 2.5 into 1.5 पहले नहीं करके लूंगी. ओके, क्योंकि ये करने के बाद मुझे 3.14 जो भी नंबर आएगा उसका मुझे टेबल याद नहीं है. पर अगर मैं ऐसे करती हूँ कि 3.14 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ या इसको इससे करती हूँ, देन 2.5 के साथ करती हूँ, तो मुझे 25 का टेबल आता है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो देखो अभी मैं कैसे कर रही हूँ. देखो मैं अभी मराठी में करूंगी बिकॉज आई एम हैबिचुएट टू दैट वन. ओके, तो देखो 3.14 into 1.5 कर रहे हैं. ओके, सो 15 चौक 7 0 चले 6 15 के 15 21 1 चले 2 15 45 6 47. ओके, तो ये हुआ अपना मल्टीप्लिकेशन. पर पॉइंट्स कितने इतने देना है? 1 2 3. ओके, तो 3 के प्लेस के बाद पॉइंट दिया, तो 3 के प्लेस के बाद पॉइंट दिया, तो आपने 0 नहीं दिया तो भी चलेगा. ओके, तो मैं अभी ऐसे ही लिख ली हूँ 4.71 into 2.5. ओके, तो 25 का टेबल तो हमें आता है, तो 25 का टेबल इज व्हाट? 25 into 1. ओके, 25 into 1 क्या हुआ? 25 से 5. ओके, 2 आएगा. 25 into 7 इज व्हाट? 175. 175 into प्लस 2 क्या हुआ? वो हुआ 177, राइट. 177 हुआ, तो यहाँ पे 7 लिखा. ओके, ये आया 17. देन 25 into 4 इज व्हाट? 100. 100 plus 1 100 प्लस 17 हुआ 117. और अभी देखो कितने डेसिमल्स है? 1 2 3. ओके, 1 2 3. ओके, तो 11.775 हुआ अपना व्हाट? इट इज द वैल्यू ऑफ द कोन विच इज इन सेंटीमीटर क्यूब. ओके, वैल्यू ओके, वैल्यू ऑफ कोन इज व्हाट? इट इज 11.775. ओके, देखो कैलकुलेशन तो हमें करना है, पर एक्सक्यूज मी. ओके, पर कैलकुलेशन मैंने ऐसे किया, मतलब मैंने करने के टाइम पे ही ऐसा चूज किया कि मुझे ज़्यादा मतलब
ऐसे जैसे जिसका मुझे टेबल नहीं आता वो मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया। देखो अगर 2.5 इंटू 1.5 मैं करती तो वो मेरा डेफिनेटली इन्वॉल्व होता, क्योंकि उसका टेबल नहीं आता मुझे। ओके, सो आपको थोड़ा सा सोचना है कि मैं क्या सिलेक्ट करूं और उसके हिसाब से करना है। द नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ स्फीयर। दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम है। मैं एक्सरसाइज से ले रही हूँ, वी विल टेक द सॉल्व वन आंसर एंड एक्सरसाइज वाले भी लूंगे। ओके, सो फाइंड वैल्यू ऑफ स्फीयर। फाइंड वैल्यू ऑफ स्फीयर। फाइंड वैल्यू ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द रेडियस? ओके, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन इज व्हाट? डायमीटर इज व्हाट? 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस विल बी, रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, राइट ना? रेडियस विल बी व्हाट? 3 सेंटीमीटर। एंड वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्फीयर। ओके, वैल्यू ऑफ स्फीयर, व्हाट विल बी द वैल्यू? इट इज 4/3 pi r square, right? Now what will be the value of the sphere? It is 4/3 pi r cube. Okay, sorry. और ध्यान दो कि हमें पता है कि यूनिट क्या आना चाहिए, यूनिट मीटर क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पे रेडियस का क्यूब ही होना चाहिए। जहाँ यहाँ पे देखो r स्क्वायर इंटू एच, तो क्या हुआ? क्यूब हुआ, तो ही यूनिट क्या है, राइट ना? 2 and 1 3 हो जाएगा, मतलब जो सेंटीमीटर में आ रहा है या मीटर में आ रहा है वो 3 क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। सो यू विल गेट 4/3 pi r cube. ओके, तो अगेन 4/3। ओके, रेडियस क्या अपना 3 है और पाई क्या है? मैं अगेन 3.14 लूंगी क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। देन व्हाट? इट इज 3, रेडियस 3 क्यूब है। ओके, बट 3 क्यूब है, सो आई कैन राइट 3 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके ओके, सो ये 1 3 कैंसिल हो जाएगा। एंड देन व्हाट? देखो अब क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ 4 3 12 करती हूँ। ओके, और 3.14 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। देखो आप चाहे तो इसका भी कर सकते हैं, 9 का भी टेबल हमें आता है। ओके, सो 4 3 12। ओके, इसको किया मैंने, 4 3 12 किया। ओके, 4 3 12, तो एक 3 कैंसिल हो गया, एक 3 ऑलरेडी कैंसिल है, एक है ना? सो 4 3 12 का 3.14 इंटू 3 क्या होगा? सो 42 एंड 3 3 9। देखो अगर कोई डेसिमल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है तो मैं 4 3 42 डायरेक्टली लिख सकती हूँ, क्योंकि उसमें कोई कैरी नहीं आ रहा है, राइट ना? ओके, सो 12 इंटू 9.42 का ही मल्टीप्लिकेशन करना अभी बचा है। सो 12 2 24, सो 4 देन 2। ओके, बाजू 48 एंड दोन पन्ना शून्य, देन यू विल गेट 5 बार 9 108 एंड 5 इज व्हाट? सो 8 113। ओके, यू विल गेट 113 और पॉइंट 2 डेसिमल्स के बाद इट विल बी व्हाट? इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो वैल्यू इज व्हाट? इट इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में? ओके, तो आप ऐसे चूज करो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं सिर्फ आई एम टेलिंग यू द इजीएस्ट वे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस एंड हाइट इज गिवन। ओके, फाइंड व्हाट? क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, फाइंड total surface area. Okay, find total surface area of cylinder. Okay, find total surface area of cylinder if radius of base is, radius of base दिया है कितना है वो? radius of base is 5 centimeter and height is 40 centimeter. Okay, okay, so this is the point. Okay, देखो फिर। ओके, सो गिवन डेटा में क्या आएगा? रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज व्हाट? 40 सेंटीमीटर। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिलेंडर? क्या होता है सिलेंडर का वैल्यू? इट इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट ना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिलेंडर? नहीं, व्हाट दे आस्क? दे आस्क द टोटल सरफेस एरिया। ओके, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का? टोटल सरफेस एरिया है इट इज 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, राइट ना? राइट ना? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया एंड प्लस 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल। ओके, पाई आर स्क्वायर का ऐड करके। ओके, सो अगेन वी विल सॉल्व। अगेन पाई इज व्हाट? वी विल टेक
3.14, radius is what, 5, and radius plus height is what, radius is 5 and height is 40. So you will get 2 into 3.14 into 5 and then what, it is 45. ओके देखो यहाँ पे 5 टू ज़ा 10 होगा, 5 टू ज़ा 10 और 10 इंटू 3.14 वो क्या होगा 31.4. ओके राइट ना, 5 टू ज़ा 10 किया और 10 को 31.4 से मल्टीप्लाई किया एंड 45. यहाँ पे मुझे कोई छोटा शॉर्टकट नहीं दिखा और 2 5 ज़ा 10 तो ये सबसे अच्छा है कि एक पॉइंट ये हुआ. तो अभी हम इसको करते हैं 3.14 इंटू 45. सो इट कम्स आउट टू बी ओके. तो 4 84 7 1 4 4 5 4 5. ओके सो दिस इज ओके एंड वन कर पॉइंट. सो यू विल गेट 1413. क्या आया 1413. 1413 and total surface area. So what will be the unit? It will be centimeter square. Okay. So it is what? Total what? Total surface area. Total surface area of cylinder. Okay. Total surface area of cylinder what? क्या है आंसर? It is 1413 centimeter square. Okay. Next देखते हैं. Find surface area of sphere. क्या है surface area of sphere? It is 4 pi r square. Find ओके यहाँ पे इतना ही चेंज करना है. फाइंड सरफेस एरिया. ओके फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. ओके और क्या गिवन है? ऑफ रेडियस गिवन है. ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज गिवन विच इज 7 सेंटीमीटर. ओके तो गिवन डेटा में रेडियस है 7 सेंटीमीटर. देखो अभी अपने पास 7 है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला. पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज कर सकते हैं. ओके सरफेस एरिया. सरफेस एरिया किसका? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. क्या है फॉर्मूला? इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. ओके क्या है फॉर्मूला? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज व्हाट? 4 पाई आर स्क्वायर. सो हम वी विल यूज दैट वन. ओके 4 पाई इज व्हाट? हम पाई क्या लेंगे? पाई इज व्हाट? 22/7 and radius is what? It is 7 into 7. So ये क्या हो जाएगा? 7 7 कैंसिल हो जाएगा. Then 24 it is what? 88 into 7. Okay, say 7 8 जा 56. 6 5 7 जा 56. 616. What you will get? You will get 616 centimeters square. Okay, so this is the surface area. Surface area of sphere. Okay, so we have studied the geometrical shapes, we have studied their formulas, and we have solved some problems. Other problems in the next class.